गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्विकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इससे रिलेटेड टॉपिक को रिवाइज या डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका क्या मीनिंग है, क्या कॉन्सेप्ट है, उसको समझने के लिए आप ध्यान दें कि मान लेते हैं Q एक चार्ज है, P एक पॉइंट है, हुज डिस्टेंस फ्रॉम द Q चार्जेज आर एंड वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लेकर आते हैं देन वी हैव टू परफॉर्म वर्क against the electric field of the source charge, and same work is equal to the potential of the point P. Means amount of work done in moving the charge, unit positive charge from infinity to respective point is called electric potential. Now instead of shifting unit positive charge, if we are shifting a test charge from infinity to the respective point, let W infinity P is the amount of work done. Means Q नॉट चार्ज को शिफ्ट करने में कितना वर्क करना पड़ रहा है, W इन्फिनिटी P। तो ये बताओ यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, W इन्फिनिटी P बाई Q नॉट। एंड वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द रेस्पेक्टिव पॉइंट। ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन हम इन दोनों कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज in moving it from infinity to the respective point. Potential is a scalar quantity, as its formula is work done per unit charge, means its unit is joule per coulomb, and it is also called volt, and the symbol for volt is V. Now if we have to define 1 volt, तो जब भी 1 वोल्ट को डिफाइन करना है, किसी भी यूनिट को डिफाइन करना है, उससे रिलेटेड फॉर्मूले के बारे में सोचो। 1 वोल्ट से रिलेटेड, यानी 1 वोल्ट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल, और पोटेंशियल से रिलेटेड हमारे पास क्या फॉर्मूला है, W by Q naught. If amount of work done is 1 joule and Q naught is 1 coulomb, then the potential of the point is equal to 1 volt. तो 1 वोल्ट को डिफाइन करने के लिए हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे। तो इसकी क्या डेफिनेशन हम यूज करेंगे, इफ 1 जूल ऑफ वर्क is required to move unit positive charge from infinity to the respective point, then the potential of that point is 1 volt. Okay, and next topic is electric potential due to a point charge. अगर हमें किसी point charge के कारण कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे वो आप ध्यान दें कि let Q is a charge and P is a point and its distance from the source charge is R. अब इस पॉइंट पर पोटेंशियल को फाइंड आउट करने के लिए हम एक टेस्ट चार्ज को मूव करेंगे फ्रॉम इन्फिनिटी टू द रेस्पेक्टिव पॉइंट। अगर हम टेस्ट चार्ज को किसी भी पाथ के अलोंग मूव करें इन द इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन ऑफ द सोर्स चार्ज, द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, वेदर वी आर शिफ्टिंग इट अलोंग ए स्ट्रेट पाथ और अलोंग ए कर्व पाथ, इट ओनली डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। ओके, नाउ let us consider that we are shifting a test charge from infinity towards the respective point along a straight path at any intermediate point A. Its distance from source charge is x. Okay, it will experience a force which is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q naught upon x square. Okay, direction of this force is outward. Now we are displacing it against the electrostatic repulsive force. Hence, amount of work done is given by F dot dx. Okay. When we expand the dot product, we have F dx cos of 180. Cos of 180 is the reason is that F and dx they are pointing in opposite direction. And cos 180 is -1. तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, माइनस साइन, और F की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन x square and dx. Okay, this is the work done in shifting the test charge from A to B, and we have to find the total amount of work done in moving the test charge from infinity to the respective point. तो total work done को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, we have to take integration on both side. Therefore integration of dw is w and integration of this side is integration with limits infinity to p or this value. Okay, इसमें जो भी टर्म्स कांस्टेंट है दैट कैन बी टेकन आउट, दैट इज माइनस Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऑल दीज टर्म्स आर कांस्टेंट, एंड विद इन इंटीग्रेशन वी हैव 1 by x square dx and the limits are infinity to r. The reason is that when point is at infinity, the distance of the infinite point from the test charge is infinite. When test charge reaches to point P, the value of x became equal to r, means x changes from infinity to r. That's why we are using the limit infinity to r. अब इसमें जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, आपने 11th क्लास में भी काफ़ी पढ़ा होगा
और उस इंटीग्रेट करेंगे तो ये इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स। ओके, एंड द लिमिट्स आर इन्फिनिटी टू आर। जब लिमिट्स की वैल्यू हम रखते हैं तो अपर लिमिट वैल्यू माइनस लोअर लिमिट वैल्यू, तो अपर लिमिट वैल्यू मीन्स माइनस 1 बाई आर, एंड लोअर लिमिट वैल्यू उसमें से माइनस करेंगे माइनस 1 बाई इन्फिनिटी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ओके, तो वी आर रिमेनिंग विथ 1 बाई इन्फिनिटी इज 1 बाई इन्फिनिटी जो है वो किसकी वैल्यू क्या है, 0। एनी नंबर डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट इज 0। वी आर रिमेनिंग विथ माइनस 1 बाई आर। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस माइनस प्लस, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ओके, एंड दिस इज द वर्क डन इन मूविंग टेस्ट चार्ज, एंड वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी इसको इधर ले आओ तो that ratio is called work done per unit test charge is called electric potential, means electric potential is equal to q upon 4 pi epsilon naught r, and according to this relation potential is inversely proportional to the distance, and for any point at infinity its potential is 0 as r is infinite. Now the next topic is electric potential difference. Same concept है, ज़्यादा difference नहीं है। q एक source charge है, a and b are the 2 points। अगर हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को शिफ्ट करें फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, एंड द वर्क डन इज WAB, वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज VB माइनस VA। अगेन जगह पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज की जगह पर अगर हम किसी टेस्ट चार्ज को शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, एंड द वर्क डन इज WAB, तो Q नॉट चार्ज को मान लेते हैं, Q नॉट चार्ज को यहाँ से यहाँ लेकर आ रहे हैं, A से B तक शिफ्ट कर रहे हैं, तो वर्क डन कितना है, WAB। तो यूनिट चार्ज को शिफ्ट करने में कितना वर्क होगा, WAB बाई Q नॉट, एंड दैट वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस की भी डेफिनेशन हम इसी के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट कैन बी डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ओके, इट्स यूनिट इज आल्सो वोल्ट। ये इस रिलेशन से आपको एक चीज़ नजर आ रहा होगा कि इफ़ यू हैव टू फाइंड द वर्क डन इन मूविंग एनी टेस्ट चार्ज, दैट वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड बाय taking the product of test charge and potential difference between the 2 points. If we have to find the potential at any point due to number of charges, like Q1, Q2, Q3 and so on, there are number of charges and their distances are R1, R2, R3 and so on. Okay, इस point पर potential कैसे calculate किया जा सकता है? We have to calculate the potential of the point P due to first charge, due to second charge, due to third charge, due to fourth charge and so on. And as potential is a scalar quantity, in order to find their net potential we have to take their algebraic sum, not vector sum, because potential is a scalar quantity, whereas in case of electric field and electric force, the net force or net electric field can be calculated by taking the vector sum of the electric fields or forces. Okay, now if we write the value of potential of the point P due to the first charge, it is Q1 upon 4 pi epsilon naught r. If we write the value of potential of this point due to second charge, it is Q2 upon 4 pi epsilon naught R2, where R2 is the distance of the Q2 charge from the given point, and so on. Okay, इन सब में कॉमन है 1 upon 4 pi epsilon naught, और इन सभी टर्म्स का जो सम है that can be represented by summation sign, that is summation of Qi by Ri. Okay, where I varies from 1 to n if there are n number of charge. Now the next topic is electric field intensity and potential difference. इस चीज़ को समझने के लिए आप ध्यान दें कि Q एक सोर्स चार्ज है एंड A and B are the 2 points. हम यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज को प्लेस कर रहे हैं एट पॉइंट A. ओके, अगर इस पॉइंट पर हम टेस्ट चार्ज को प्लेस कर रहे हैं तो दिस टेस्ट चार्ज विल एक्सपीरियंस ए फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड द फोर्स एक्सपीरियंस्ड इज गिवन बाय Q नॉट इंटू E, and that force is acting in outward direction. अब अगर हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं from A to B by a small distance delta r, then the work done in moving the test charge from A to B is given by F dot delta r. Okay, and here F dot delta r को जब expand करेंगे तो क्या आएगा, F delta r cos of 180, because F and delta r they are pointing in opposite direction. ओके, कॉस ऑफ 180 इज -1, तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, माइनस ऑफ एफ डेल्टा आर। एज वी नो दैट एफ इज क्यू नॉट इंटू ई, तो एफ की जगह पर हम लिख सकते हैं क्यू नॉट इंटू ई। ओके, इस क्यू नॉट को अगर इधर भेज दें तो वी ऑन लेफ्ट हैंड साइड वी विल हैव
work done per unit test charge, and it is equal to minus of E delta R, and work done per unit test charge is called potential difference. Okay, means potential difference is equal to minus of E delta R, means E can be written as minus of delta V by delta R. If delta R tends to 0, then delta sign can be replaced by derivative sign. Hence electric field can be expressed as minus of dV by dr. Okay, and dV by dr can be expressed, या it can be called as potential gradient. आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, change in velocity with distance, velocity gradient. Change in temperature with distance is called temperature gradient. Therefore the change in potential with distance is called potential gradient. This relation clearly indicates that electric field is equal to negative of the potential gradient. Now next topic is equipotential, मतलब एक ऐसा सरफेस जिसके सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम है. अगर मान लेते हैं ये एक सरफेस है जिसके सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, दैट सरफेस कैन बी कॉल्ड एज इक्विपोटेंशियल सरफेस. ओके, नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की क्या प्रॉपर्टीज होंगी वो आप ध्यान दें कि वर्क डन इन मूविंग any charge, any test charge from one point to another on equipotential surface is equal to 0. The reason is that क्योंकि A and B are the points on the equipotential surface, उनका potential equal है, तो ये जो difference है ये 0 है, therefore work done is also 0. Okay, work done is equal to the product of charge and potential difference. Second property is that electric field lines are always normal to the surface. They are always perpendicular to the surface. मान लेते हैं कि electric field is not normal. It is inclined at theta angle with the surface, and A and B are the 2 points on the equipotential surface. अब because of the presence of the source charge, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कारण इस पर एक फोर्स लगेगा in outward direction, and we are shifting it from A to B. Therefore work done is given by F dot delta R, and F is equal to Q naught into E. Okay, so we have Q naught E into delta R. Okay, dot delta R. इस Q नॉट को अगर इधर लेकर आए तो वी हैव वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, एंड द वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, एंड ऑन राइट हैंड साइड वी आर रिमेनिंग विद E डॉट डेल्टा आर. ओके, एंड वी नो दैट वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज और वर्क डन इन मूविंग एनी चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज इक्वल टू 0. ओके, और राइट हैंड साइड को अगर एक्सपेंड करते हैं वी हैव E डेल्टा आर cos of theta, where theta is the angle between E and delta R. अब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस जगह पर 0 है? नो. क्या डिस्प्लेसमेंट 0 है? नो. तो ये जो प्रोडक्ट है इन तीनों का प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है? 0 कब हो सकता है? ओनली इफ cos theta is 0. cos theta 0 कब होगा? when theta is 90. if theta is 90 means this electric field, it is perpendicular to the equipotential surface. In this way we can prove that electric field is always normal to the equipotential surface. अभी थोड़ी देर पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था E is equal to minus of delta V by delta R or minus of dV by dr, means electric field is negative of the potential gradient. Okay, this relation clearly indicates that electric field is inversely proportional to dr, where this relation clearly indicates that if dr is, then electric field is large. They are inversely related, means electric field is strong. If dr is large, electric field is small, means weak. Okay, ये clearly indicate क्या कर रहा है कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस में स्पेसिंग कम है तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पेसिंग बढ़ रही है, स्पेसिंग ज़्यादा है तो वो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज दैट टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. मान लेते हैं ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसके सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल की वैल्यू V1 है. ये दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसके सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल की वैल्यू V2 है. ओके, इफ़ दे इंटरसेक्ट तो एक ही पॉइंट पर पोटेंशियल की दो वैल्यूज हो जाएगी जो कि पॉसिबल नहीं है. Now let us discuss about the shapes of the equipotential surfaces in different cases. Okay, for uniform electric field, we know that uniform electric fields are represented by parallel arrows. So equipotential surfaces, they are represented by equally spaced plane surfaces. In case of positive point charge, equipotential surfaces, they are in the shape of spheres, concentric spheres. Okay, और यहाँ पर आपने नोट किया होगा कि इनर जो स्पेयर्स हैं दे आर क्राउडेड, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है उनके बीच का गैप भी बढ़ रहा है. ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि
क्राउडेड इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज है वो रिप्रेजेंट करता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन को, और जहाँ पर गैप ज़्यादा है वो रिप्रेजेंट करता है वीक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन को. Electric field lines in case of positive charges are radially outward, whereas in case of negative charges electric field lines are radially inward, and they are always normal. They are always normal to the equipotential surfaces. Okay, तो दोनों का पैटर्न सेम है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डिफरेंट है. Now if we are having a system of two positive point charges, okay, in such case इसके लाइन ज्वाइनिंग पर पोटेंशियल जीरो नहीं होगा. ना यहाँ पोटेंशियल जीरो है, ना यहाँ पोटेंशियल जीरो है, ना यहाँ पोटेंशियल जीरो है. इसका मतलब क्या है, पॉइंट से इक्वी पोटेंशियल सरफेस पास हो सकता है. तो यहाँ पर जो ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस का पैटर्न है वो इस तरह का होगा. इन केस ऑफ सिस्टम ऑफ टू अपोजिट चार्जेस, बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट चार्ज, इस पॉइंट पर पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, इस नेगेटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल नेगेटिव होगा, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो यहाँ पर ज़ीरो हो सकता है. यानी कि अगर इस पॉइंट की बात करें तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी इक्वल है, तो इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल ज़ीरो हो सकता है इफ़ द चार्जेस आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑफ अपोजिट नेचर. तो ये एक ऐसा सरफेस हमें मिलेगा जिसके सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल की वैल्यू ज़ीरो है. पोटेंशियल की वैल्यू ज़ीरो होने का मतलब है कोई भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस इन पॉइंट से पास नहीं हो सकता. तो हमें क्या बनाना है, स्फेरिकल सरफेस बनाने हैं, धीरे धीरे उनको शिफ्ट करना है. इन दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट इक्वी पोटेंशियल सरफेसेज ड्यू टू सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस. ओके, दे कैन नेवर, मतलब इंटरसेक्ट तो कर ही नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर उनको हमें आउटवर्ड डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करना है. लेट अस डिस्कस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल. ओके, एंड लेट माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर द two charges of the dipole. They are at point A and B, and they are separated by distance 2a. Okay, let P is a point whose distance from the center of the dipole is r. R is the distance of this point. Okay, यहाँ पर आप ध्यान दें कि distance of the point P from first charge is r1, distance of the point P from second charge is r2. Now if we have to write the potential of this point due to first charge, तो क्या आएगा, माइनस ऑफ क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आर. नेगेटिव साइन किस लिए, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है. इन केस ऑफ स्केलर क्वांटिटी वी हैव टू कंसिडर द साइन ऑफ द चार्ज. ओके, तो पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट ड्यू टू फर्स्ट चार्ज इज माइनस क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आर, वेयर एज पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट ड्यू टू सेकेंड चार्ज इज प्लस क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस. ओके, तो नेट पोटेंशियल एट दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू टू चार्जेस, दैट इज V1 प्लस V2. अगर हम वैल्यूज रखें, वी हैव Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट विद इन ब्रैकेट, ये माइनस साइन 1/R1, फिर प्लस 1/R2. ओके, प्लस वाली टर्म को हम पहले लिख देते हैं, माइनस वाली टर्म को बाद में लिख देते हैं. वी हैव दिस वैल्यू. ओके, नाउ लुक एट द फिगर. अगर हम इस OP को प्रोड्यूस करें और A पॉइंट से और B पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, AM is perpendicular on OP and BN is perpendicular on OP. ओके, ये एंगल थीटा है और ये वैल्यू A है, तो ये जो वैल्यू आएगी, ये जो डिस्टेंस आएगा, तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू A cos थीटा. इसी तरह से इन दिस ट्रायंगल AMO, ये एंगल थीटा है, तो cos थीटा के कॉन्सेप्ट को यूज़ करें तो OM विल बी इक्वल टू A cos थीटा. ओके, यहाँ पर आप ध्यान दें कि वैसे तो R1 MP के इक्वल नहीं है. इन केस व्हेन द पॉइंट इज फार अवे, इन सच केस दीज टू डिस्टेंसेस कैन बी कंसिडर्ड टू बी नियरली इक्वल. तो देयरफॉर वी आर राइटिंग R1 इज नियरली इक्वल टू MP. ओके, एंड MP is equal to OP plus OM, and OP is equal to R, and OM is equal to A cos theta. Similarly, in this triangle, in triangle PNB, again R2 is not equal to MP, but in case when point is far away, then we can consider R2 to be nearly equal to the PN. Okay, so R2 is nearly equal to NP, and NP is equal to OP minus ON. OP minus ON. Okay, OP is equal to R, OP is equal to R, and ON is equal to A cos theta. Now, if we substitute the value of R1 and R2 in this relation,
R2 is equal to R minus A cos theta, whereas R1 is equal to R plus A cos theta. A minus B, A plus B, तो it can be written as A square minus B square. और एलसीएम के साथ ही इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो R से R कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा A cos थीटा, तो A cos थीटा प्लस A cos थीटा इज 2A cos थीटा. ओके, तो वी हैव Q इंटू 2A cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. यहाँ पर आप ध्यान दें कि इफ R is means the point is very far away from the dipole, means R is extremely large as compared to A. In this relation we can ignore this term as compared to R, and we have potential of the point P is equal to P cos theta upon 4 pi epsilon naught R square. Okay, means V is inversely proportional to square of distance. Now let us consider that the point lies on axis. If the point lies on axis, पहले जो एंगल थीटा बन रहा था, अगर पॉइंट एक्सिस पर है तो एंगल विल बिकेम इक्वल टू 0, मीन्स थीटा इज 0, एंड इफ थीटा इज 0 कॉस थीटा इज 1, मीन्स पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल इज गिवन बाय, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी 1, इसकी वैल्यू क्या होगी 1, तो हमारे पास क्या बचेगा P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, यानी ये कॉस थीटा की वैल्यू 1 है. तो वी हैव दिस रिलेशन P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट within bracket R square minus A square. Now if the point P lies on the equatorial line, in such case the theta will become equal to 90 and cos 90 is 0. अगर cos 90 0 है तो पूरी टर्म की वैल्यू 0 हो जाएगी, means the potential on the equatorial line is 0. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस का मीनिंग क्या है? सपोज A B C इन 3 पॉइंट्स पर 3 चार्जेस हैं. ओके, तो इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू द वर्क डन, एल्जेब्रिक सम ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग दीज चार्जेस. मीन्स अगर मान लेते हैं पहले चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में W1 वर्क हो रहा है, दूसरे चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक शिफ्ट करने में W2 वर्क हो रहा है, तीसरे चार्ज को शिफ्ट करने में W3 वर्क कर रहे हैं. तो इस पूरे सिस्टम को असेंबल करने के लिए जो टोटल वर्क हो रहा है, सेम वर्क गेट स्टोर्ड इन द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है कि टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग द सिस्टम ऑफ चार्जेस. नाउ लेट अस डिस्कस द टॉपिक अबाउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस. सपोज Q1 and Q2 are the 2 point charges. They are placed A and B separated by R distance. Okay, initially if we assume that there are A और B point पर कोई भी चार्ज नहीं है. Okay, अब अगर हम फर्स्ट चार्ज को शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट ए, क्योंकि कोई दूसरा चार्ज नहीं है, देयरफॉर वर्क डन इन मूविंग इन शिफ्टिंग दैट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए इज इक्वल टू 0. ओके, नाउ इफ वी शिफ्ट द सेकेंड चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी, देन द वर्क डन इज गिवन बाय W infinity B, and work done in moving this test charge is equal to the product of the charge and potential difference between the 2 points, and which is VB minus V infinity, and potential of infinite या potential at infinity is 0, and B point का जो potential है that will be due to the presence of first charge. First charge की presence के कारण यहाँ potential होगा. If this distance is R, then the potential of this point will be equal to Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, यानी कि इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है VB, और VB की वैल्यू कितनी है Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R. तो वी गेट W वर्क डन इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R. तो टोटल वर्क डन कितना होगा W1 प्लस W2. W1 इज 0 एंड W2 इज इक्वल टू दिस, and same work get stored in the system in the form of energy called potential energy. Therefore the potential energy of the system of 2 point charges is given by Q1 Q2 upon 4 pi epsilon naught R. System of 3 charges हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन समटाइम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस में इसमें कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए एक बार इस टॉपिक को शॉर्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं. नाउ सपोज Q1 Q2 Q3 these are the point charges placed at point A B and C. ए बी के बीच का डिस्टेंस कितना है R12, बी सी के बीच का डिस्टेंस कितना है R23, ए सी के बीच का डिस्टेंस कितना है R31. ओके, इनिशियली हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ए बी और सी पर कोई भी पॉइंट चार्ज नहीं है. ओके,
अगर हम अब फर्स्ट चार्ज को शिफ्ट करें फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए, क्योंकि दूसरा कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो यानी इन एब्सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी भी चार्ज को शिफ्ट करेंगे देन द अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी इक्वल टू जीरो। तो वर्क डन कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। नाउ दिस Q1 चार्ज इज एट पॉइंट ए and we are shifting the second charge in the presence of the electric field of the first charge. Okay, in such case the work done is equal to product of the charge and potential difference between the 2 point. Means हम Q2 को शिफ्ट कर रहे हैं from infinity to point B, तो charge is Q2 and shift कर रहे हैं infinity to point B, तो potential difference is VB minus V infinity. Okay, V infinity is 0 एंड इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो किसके कारण है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फर्स्ट चार्ज। ओके, फर्स्ट चार्ज के कारण इस पॉइंट का पोटेंशियल आएगा Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो वी गेट W2 इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। ओके, नाउ देयर आर टू चार्जेस at point A and B and we are shifting the third charge from infinity to the respective point, then the work done in shifting that third charge is equal to the product of the charge and potential difference between these 2 points, that is Vc minus V infinity, and potential of the infinity is 0। अब C पॉइंट का पोटेंशियल सिर्फ एक चार्ज के कारण नहीं होगा, दोनों चार्जेस के कारण होगा, क्योंकि अब यहाँ पर Q1 भी है और Q2 भी है। तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट C कैन बी रिटन एज पोटेंशियल ड्यू टू सेकेंड चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। वो मैंने यहाँ लिखा है। जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा Q2 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23 प्लस Q3 Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R31। ओके, तो दिस इज द वर्क डन इन शिफ्टिंग द थर्ड चार्ज। तो टोटल वर्क डन कितना आएगा? W1 प्लस W2 प्लस W3, इन तीनों का सम आता है, ये जो टर्म नज़र आ रही है Q1 Q2 अपॉन दिस, Q2 Q3 अपॉन दिस, Q3 Q1 upon this। okay, same work get stored in the system in the form of energy called potential energy, means the potential energy of system of three charges is given by this relation। okay, thank you for today।